اور فروغ تعلیم یہ تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جو ہم بڑے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے 1 سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ 1 سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1 کروڑ 6 لاکھ بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں۔
اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی. جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے. اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. بہت شکریہ جی. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انرول کرنا ہے. لیکن اصل اس میں فوکس جو ہے آپ نے خود ہی بات میں کہہ دیا کہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے. یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکے، یہ بتا سکے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے. اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہوں پہ جگہ آئی ہے، بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس پہ کل ہم نے بات کی تھی اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی. ان دو چیزوں پر بات ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئے گی. ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی. ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں. تو ٹوٹل جو ہیں وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے. اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر 1200 اسکول جو انہوں نے اپ گریڈ کیے تھے، اور ہم نے جو پچھلے ایک ہی سال میں 1200 کئی اسکول ہم نے بھی اپ گریڈ کیے تھے. اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے. تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی. خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ سیم صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں. ہائر ایجوکیشن میں بھی، اس کے ساتھ آپ نے اسکول میں بھی بتایا 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں. آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے. اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس پر بھی آپ نے ایکشن لیا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے، یا کوئی اس محکمہ اسکول پہ، وزرا پہ، یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی جو مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا.
کورونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تھوڑی سی کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں, تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. کورونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید, جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹرنون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے جہاں پر بس جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے, ان کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ چل رہے ہیں, آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ جس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ دیے, باقی چیزیں کی, اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل مونس لائی نے اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے, طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں؟ ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائزڈ کریں. ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے, انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی, ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینس تھیں, ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے, اور 8000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف, تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو, ریونیو میں بھی ہو, تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے, اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے, وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. ایجوکیشن کا بتا دوں ذرا, ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر آئے, یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی, ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی. اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں ڈسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں ڈسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپون کے اوپر ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈیٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن میں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے, آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ دیکھنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو پہ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں, جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگٹ 1 ملین کا دیا تھا. سوال کر لیں, آواز آ رہی ہے. سی ایم صاحب, ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں تھا لگایا پنجاب میں, تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن لگانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آپ بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا, جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی ٹیررسٹ کو یا کسی اہم شخص کے ہاتھ کو لگائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی ہوتی ہے؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے.
वो जैसे ही आती है इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, वो NCOC की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोविंशियल कमेटी कोरोना बैठती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है। तो इंशाल्लाह वो हम डे टू डे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, तो जैसे ही मुनासिब होगा हम वैसे फ़ैसले लेते जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ़ हो, उनको हम किसी मुश्किल में डालें, ताकि कारोबार भी चलता रहे और हम चीज़ों को भी मैनेज कर सकें। तो उससे सबसे अच्छा और आसान काम यही है कि SOPs को हम फॉलो करें ताकि हम किसी मुश्किल से बचे रहें। सीएम साहब ये फरमाइएगा कि यकसा निज़ामी तलीम जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये मंशूर था कि यकसा निज़ामी तलीम होना चाहिए। पंजाब के अंदर जो है वो 5वीं तक जो है वो उर्दू मीडियम में जो है आप तलीम दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट तलीमी अदारे जो हैं वो अभी तक नहीं दे रहे। तो यकसा निज़ामी तलीम जो है वो कब तक आप ड्राइव करेंगे? और दूसरा, सीएम साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पूरा 1 हफ्ता हो गया है, जबरदस्त किस्म के चौके छक्के लगा रहे हैं, मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये बताएं कि अगर मरियम नवाज बीबी जो है वो अपने वालिद से मिलने जाना चाहती हैं तो क्या हुकूमत उनको इजाजत देगी? और आप समझते हैं एक बेटी को बाप के पास जाने की इजाजत होनी चाहिए? जी मैडम ही जवाब दें इसका। देखिए बात यह है कि इस मुल्क में इस कौम की करोड़ों बेटियां हैं जो इस वक्त उनके वालिद साहब के दिए हुए जख्म चाट रही हैं। तो उनकी नाकस पॉलिसीज, शाही फरमान और शाही खानदान के रवैयों का शिकार जो है आज पाकिस्तान की बेटियां पुकार पुकार के इमरान खान की तरफ देख रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे जो वसाइल थे, जो तालीम पर खर्च होने चाहिए थे, जो बेटर केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ पर खर्च होने चाहिए थे, जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे जिसमें वो बाख्तियार होती, हुनरमंद होती और माशरे का बोझ उठाने के काबिल होती, तो उनको मेट्रो और ऑरेंज बस जैसे मंसूबे दे के जो उनका हकीकी हक था उसका कत्ल किया गया। तो वो भी इस कौम की बेटियां हैं जो जुल्ले सुबहानी के उन रवैयों का शिकार हैं जो उनके कारोबार और ज़ाती मफाद के साथ जुड़े थे। तो कानून ना बेटी देखता है ना माँ देखता है, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दर्ज इख्तियार है उसको देखता है। तो उसके अंदर किसी अमीर की बेटी या किसी गरीब की बेटी में कोई तफरीक नहीं है। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि नो वन इज अबव द लॉ। थैंक यू। मैं इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून में रिलैक्सेशन दी जाए और किसी के ऊपर अप्लाई किया जाए। कानून सबके लिए बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फिगर्स जब आपको बता रहा था, मैं कह रहा था कि अगर हमें ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन के हमें अगर 30 अरब रुपए न देने पड़ते तो आज ये दूसरा और तीसरा फेज़ हम साथ ही उसका ऐलान करते। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जानते हैं अच्छी तरह कि पिछले जो अदवार में क्या किया गया। और अपग्रेडेशन की आपको फिगर मैंने आपके सामने रखी है कि जो पिछले 5 साल में 2013 से 18 तक 1251 स्कूल अपग्रेड किए गए सूबा के अंदर, और हमने 1 साल के अंदर 1227 स्कूलों को इससे पहले अपग्रेड कर दिया है। और आज हम 27,517 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये छोटी बात नहीं है, इसको आप खुद देख लें। ताकि बाकी स्कूल से भी कर सके जी। ये फरमा दें कि आमतौर पे तासुर है कि आप मेरिट पे ही काम कर रहे हैं और पहले जो इन्होंने ई लर्निंग ट्रांसफर का मामला था टीचर्स का, वो भी डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वो काफी पॉपुलर हुआ। आप जो इस वक्त आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो क्या इसको भी आप उसी मैकेनिज्म में लेके जा रहे हैं जैसे आप ट्रांसफर करते हैं कि किसी टीचर्स को पता भी नहीं होता और उसका ट्रांसफर हो जाता है, ये इसको भी इसी तरह अपग्रेड करेंगे या कि फिर सियासी आपकी जो मामलात है वो सामने आ जाते हैं, कोई MPA आ जाता है, कोई MNA आ जाता है और 50 MNA आपके से नाराज भी किया जाता है कि वो नाराज थे कि आप उनके काम क्योंकि मेरिट पे नहीं थे, आपने जवाब दे दिया उनको। पहली बात तो ये है कि कोई भी नाराज़ नहीं है।
ये इसको आप दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, जो हमारी ई ट्रांसफ़र है उसमें कोई टेक्निकल गलती तो हो सकती है, लेकिन आज तक कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी को पसंद या नापसंद पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये जो 27,000 अपग्रेडेशंस हैं, इसमें ऑटोमेटिक एक क्राइटेरिया हमने बना दिया कि जिसमें 100 बच्चे हैं, जिसमें 150 बच्चे हैं, जिसमें 300 बच्चे, इस तरह का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली वो स्कूल अपग्रेड तस्वर होगा। उसको किसी सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको CM ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड तस्वर किया जाएगा। बहुत सर मिला पिछला भी बता दें, जब वो वाले हुए थे तो उसमें भी कोई बता दें। ये जो पिछले 1227 जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं उसमें भी कोई इस किस्म की सिफारिश शामिल नहीं थी। पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होमवर्क किया गया, उसमें जो फिजिबल थे, जो उस क्राइटेरिया में आते थे, ऑटोमेटिकली उनको अपग्रेड किया गया है। CM सर, मोहसिन फिलहाल समझ से मैं कल वाले अपने सवाल की कंटिन्यू चाहता हूँ ताकि आपसे कुछ जवाब हम सुन सकें और पंजाब की आवाम भी जान सकें। आपने निचली सतह से आप ऊपर आए हैं, यदि उसी लेवल की सतह पर आपने सियासत की, वहाँ से आप ऊपर आए हैं। कुछ जानशीन ऐसे हैं जिसमें मौलवी सिलाई है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, डायरेक्ट सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं और उसी लेवल तक की इन्होंने सियासत नहीं की। वो हमेशा आपकी करदारकुशी करते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि उन्हें आपकी एक भी अच्छा काम जो है नहीं पाता, जिस तरह लैपटॉप का निशान ने जिक्र किया। आप बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत पर हमले कर रहे हैं, तो इन सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले जानशीनों को आप क्या जवाब देंगे? मरियम के हवाले से तो मैडम ने बता दिया, कौन सुनना चाहती है कि आपकी इनके बारे में क्या राय है जो इतने बड़े सूबे के CM को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जीरो है? मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं और हम मेरिट पे तवज्जो देते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाय करें। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने डिसीजन करें और अपना काम करें। मेरे ख्याल में पहले तो वो अपने जो मामलात हैं उनको देखें कि उनके ठीक हैं, तो फिर हमारी बात करें। CM साहब, मैं खाबर अब्बास बोल रहा हूं से। CM साहब, जिस तरह से आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स का ऐलान भी किया है, अभी तो ये मामला अगस्त से स्टार्ट होंगे। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है मुल्क वो कोरोना की वबा की जकड़ में है और जो गरीब वालिदैन हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो 1 साल से स्कूल्स बंद पड़े हैं और बच्चों से फीसेस भी चार्ज की जा रही हैं। और जब उनकी स्लिप देखते हैं सैलरी फीस की स्लिप्स, तो उनमें जनरेटर का बिल भी, सिक्योरिटी का बिल भी पड़ा हुआ होता है। तो क्या ऐसा नहीं कोई पंजाब हुकूमत लाहेमल बना सकती कि प्राइवेट स्कूल्स को बुला के कोई ऐसा रिलीफ फंड दिया जाए जिससे स्कूल्स मालिकान का भी काम चलता रहे और गरीब आवाम को भी जो रिलीफ मिल सके? देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि पहले 6 महीने जब स्कूल्स बंद हुए थे, आपको याद है पिछले साल हमने 20% डिस्काउंट दिया था फीस की और हमने इंश्योर किया था, और जितने केसेस हमारे पास आए थे उसके बाद भी कई स्कूल्स नहीं दे रहे थे, हमने फिर भी वो इंश्योर करवाया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि स्कूल्स बंद होने शुरू हो रहे थे, जो क्योंकि 70% स्कूल पंजाब के अंदर वो 5,000 उससे कम फीस वाले, 70%। सो आप देखें कि अब हमने पहले तो पेरेंट्स को सपोर्ट किया, फैमिलीज को सपोर्ट किया, उसके बाद हमने स्कूल्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना था, क्योंकि पेरेंट्स ने फीसें देनी बंद कर दी थी। जब उन्होंने फीसें देनी बंद की तो स्कूल बंद होने शुरू हुए, क्योंकि टीचर्स को सैलरीज भी देनी थी। अगर घर बैठे हुए हैं टीचर को स्कूल्स के अंदर हैं, उनको सैलरी तो जानी थी, उनको नौकरी से तो नहीं निकाल दे रहे, बहुत लोग नौकरी से निकाल दिए गए। सो इसलिए हमें बैलेंस थोड़ा उसके अंदर करना पड़ा कि अगर फीसें देनी भी हैं तो वो ऑब्वियसली टीचर्स को जा रही हैं और बाकी चीज़ों पे जा रही हैं, उनकी फैमिलीज ने भी चलना है। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल बैलेंस था हमारा, बहुत मुश्किल था, मगर इसको हमने कोशिश की इसको बैलेंस CM साहब, ये बताइए कि जैसे कि तीसरी लहर कोरोना की बहुत चल रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर ये सूरत हाल है कि PKLI जैसे हॉस्पिटल ने भी कोरोना जो पेशेंट है उनको लेने से इनकार कर दिया, उनका कह रहे हैं कि हमारे पास की कैपेसिटी नहीं है, और जो बाकी दीगर हॉस्पिटल वहाँ पर भी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, वेंटिलेटर मौजूद नहीं है उनके पास वापस सरकार में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लाखों की रुपये की जो फीस है उनसे वसूल कर रहे हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह से तमाम जो बढ़ती हुई तादाद है लोगों की उनको पूरा कर रही है? और दूसरी बात यह है कि जैसे कि 60 साल से 4 साल से ऊपर के लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2 बच्चों की वफात हुई कोरोना से, तो
उनके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, बच्चों को कब से जो कोरोना वैक्सीन वो लगाना शुरू करें? गवर्नमेंट ने आज 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ कर दी है कि आप रिपोर्ट करें वैक्सीनेशन और एक रेट मुकर्रर करके वो दें। क्या मौजूदा जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पेशेंट्स का, क्या पंजाब गवर्नमेंट भी पंजाब में प्राइवेट शोबे को इंड्यूस करेगी या प्रमोट करेगी कि अगर खुद से करना चाहे तो करें? जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सिचुएशन जो है उसमें हस्पतालों पे प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, परसों हमने आपको बताया था कि 1.5 अरब रुपए की जो ख़रीदारी है उसको पंजाब हुकूमत ने अलाउ किया है, वो हम परचेज़ कर रहे हैं और उसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे लोगों के साथ वैक्सीनेशन करेंगे। 126-23 सेंटर ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं और वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के साथ इसको आगे बढ़ाने की बात है तो ये इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत के साथ मिल के इसको हम चाहेंगे कि कोई भी मेकनिज़म इस तरह से हो कि हम पूरे पंजाब को वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए किस तरह से हमें वसाइल चाहिए और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी जितना कुछ कर सकते हैं वो हमें करेंगे इंशाल्लाह, और हमें करना चाहिए। जी, बच्चों के हवाले में अभी तक तो कुछ इस तरह की रिसर्च नहीं आई कि उनको वैक्सीन अलाउ है, उनको लगाना चाहिए कि नहीं। ये अब टेक्निकल जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है वो हम इंशाल्लाह उनके साथ भी राब्ते में हैं, तो वो जैसे कोई टेक्निकल एडवाइस आएगी मेडिकली तो फिर उसके बाद ही हो सकेगा। अभी तक तो बच्चों में नहीं है इस तरह का कि उनको वैक्सीनेशन की जाए। जी, मैंने अर्ज़ किया कि जो वैक्सीन आती है वो वफाकी हुकूमत एक फार्मूले के तहत बताती है कि किस एज ग्रुप को किस तरह से लगना है, एक गाइडलाइंस होती हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है वो पंजाब हुकूमत उसके लिए फिर अपनी पॉलिसी तय करेगी, तो वो हम अपने फ्रंट लाइनर्स जो जितने हैं जो हम डिसाइड करेंगे वो फिर उनको हम खुद लगाएंगे। जी, वो हम कर सकते हैं। इसमें आप ये फरमाइएगा कि स्कूलों को अपग्रेडेशन करना बहुत अच्छा इकदाम है, नो डाउट, लेकिन स्कूलों के अंदर लोग अपने बच्चों को इसलिए भी नहीं भेजते कि उनका पेट नहीं भरता। न्यूट्रिशन का प्रोग्राम किया जा रहा है लाहौर में, इस तरह के बताया है कि 30,000 बच्चों को दिया है, लेकिन अभी भी लाहौर की सड़कों पर ऐसे कई बच्चे दुकानों पर काम करते नजर आते हैं कि जिनके वालिदैन स्कूलों में अपने बच्चे भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्या कोई जामिया प्लानिंग की जा रही है कि इन बच्चों को किस तरीके से स्कूल लाया जाएगा? अभी मैंने जो अपनी बात थी थोड़ी देर पहले मैंने एक की है कि लाहौर के अंदर जो 100 स्कूल हैं उनके अंदर 23,000 बच्चों को दिन का खाना मिलता है। फिर मैंने बताया कि जो गुर्बत की शरह में जो डिस्ट्रिक्ट जिनका स्कोर पावर्टी स्कोर कम है, तो वहाँ पे भी अभी हमने कहा है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप वर्कआउट करें कि कम्प्लीटली जो प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ जितने भी हैं, उनके अंदर अगर वर्कआउट किया जाए कि कितने बच्चे हैं और उनको दिन का खाना अगर फ्री दिया जाए तो उसको क्या उसके ऊपर कोशिश की जा सकती है। तो उसके ऊपर मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने जो मुझे ब्रीफ किया है, जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे पंजाब के जो पावर्टी लेवल में बहुत कम थे, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हमारा ख़र्चा पड़ता था वो तकरीबन 12 अरब रुपए का पड़ता था। 30 रुपया पर बच्चा जो वो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आ रहा था, 12 अरब रुपए का ख़र्चा तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पड़ रहा था। तो बाकी आप वर्कआउट करें, उसमें बड़े डिस्ट्रिक्ट भी हैं और 36 डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब के होंगे, तो हम इतना क्या अफोर्ड कर सकते हैं या हो सकता है। हमारा तो दिल चाहता है कि ये होना चाहिए और हम कर लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि अगर बच्चों को स्कूल में हम उनको दिन का खाना दे दें। तो इसीलिए डिपार्टमेंट को अभी इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको देखें और इसके ऊपर काम करें कि किस तरह से हम कर सकते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे पावर्टी लेवल ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह ये कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तरह का काम कर लें ताकि बच्चों को दिन का खाना तो मैसर हो सके। सीएम साहब, बच्चों को यकीनन स्कूल भेजना आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट कोई कानून साजी कर दे कि हर ख़ानदान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराए,
तो यकीनन आपको ये एक्सरसाइज सारी नहीं करनी पड़ेगी और सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा लॉन्ग टर्म इकदाम क्यों नहीं करते? आपकी अच्छी बात है, इसको भी हम लेके आगे चलेंगे। अच्छी प्रपोजल। ये उसके बाद सीएम साहब ये फरमाइएगा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आज लिया है जहाँ गवर्नमेंट ने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है, लेकिन असल जो इशू है सरकारी स्कूलों को अगर कंपेरिजन करें प्राइवेट स्कूल के साथ, तो सरकारी स्कूलों में क्लासेस में बच्चों की तादाद जो है वो कहीं ज़्यादा होती है, 50-60 बच्चे एक ही क्लास में बैठे होते हैं। तो कितने स्कूल नए जो हैं वो पिछले 2.5 सालों में बनाए गए हैं, और आगे क्या प्लान है कि नए स्कूल कितने जो है वो बनाए जाएंगे ताकि जो है वो जो एनरोलमेंट बढ़ाने की बात की जाती है जो है वो कितने तालीम किए जाएंगे? रिटेन नहीं होते किसी भी वजह से, क्योंकि पूरे पुअर होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो जब ये कोरोना की वेव पुअर होती है या जिस तरह आगे बढ़ रही है, कैसे गवर्नमेंट उन पेरेंट्स के लिए कोई इनिशिएटिव देगी कि वो बच्चों को मैकेनिक के पास, सेंटर या वेंडर के पास ना भेजें स्कूल? अभी मिनिस्टर साहब ने आपके सामने फिगर्स रखे हैं कि बेफार्म के साथ बच्चों को स्कूल में जो दाखिला दे रहे हैं और उसमें 92.4% हमें कामयाबी हासिल हुई है, और लोग अपना बेफार्म लाते हैं। तो उससे एक डिजिटलाइजेशन होती है, उससे ये भी पता होता है कि यह बच्चा किसी और स्कूल में है या कहीं से कोई इसको पैफ में किसी दूसरी जगह पे उनको कोई ग्रांट मिल रही है, एड मिल रही है, कुछ कोई चीज़ होती है, तो उससे डुप्लीकेसी का एग्जैक्ट हमें फिगर का पता चलता है। अभी तक तो इस तरह का नहीं है, ये तो सिर्फ जो रिटर्न तहरीरी तौर पे जो चीज़ें हैं, फिर तो कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, हर चीज़ हमारे सामने बड़ी क्लियर हो जाएगी। कोई 60,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, और ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ये प्योरली इनके अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं, इनमें हम ये इनको अपग्रेड कर सकते हैं, इनके अंदर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है उन्हीं स्कूलों को। तो ये देख के पूरी एक एक्सरसाइज करके उसके बाद इनको अपग्रेड किया जा रहा है। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, बिल्कुल इलेक्शन होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हुकूमत पाबंद है इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट के लिए, और इलेक्शन कमीशन जो भी सपोर्ट मांगेगी हुकूमत देगी। तो इसमें इंशाल्लाह कोई इस तरह की राय नहीं है और तमाम चीज़ें ठीक हैं। तो सर महंगाई पे जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रमज़ान करीब आ रहा है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि रमज़ान में तमाम जो ज़रूरियात की अशिया हैं उनकी कीमतों की खुद निगरानी करेंगे। तो पंजाब में किसको टास्क दिया जाएगा रमज़ान बाजार में प्राइस कंट्रोल के लिए? कल की कीमत जो है वो सरकारी मुतय्यन की गई है, लेकिन आज ही देखा जा रहा है कि ना सिर्फ जो शुगर मिल्स वाले वो एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि आगे शॉपकीपर भी अपना जो है वो मुनाफा मांग रहा है। तो किसकी ड्यूटी लगाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? आगे माह रमज़ान भी है जी। माह रमज़ान के अंदर एक तो हम अपना रमज़ान पैकेज ला रहे हैं, और उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्यूटियाँ भी लग चुकी हैं। इसी तरह इससे पहले जो तमाम सेक्रेटरीज़ थे उनको भी एक एक डिस्ट्रिक्ट अलाट होता था, ये वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उनका बाकायदा एक प्रोफार्मा है, उसमें ये चीज़ें चेक करनी है और वो करेंगे, इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे और हम देखेंगे और इंश्योर करेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह के चीज़ें जो नोटिफाइड रेट हैं उस पर हम। साहब ये बताइएगा प्लीज़ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर जो हुक्मरान है वो सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि जो मिथ्स जो पूरे मुआशरे के अंदर फैले हुए हैं वैक्सीनेशन के हवाले से वो खत्म हो सके। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जनाब के वर्दी ऑफिस को एक लेटर भी अरसाल किया गया और उसके अंदर भी यही सवाल किया गया कि आप खुद कब वैक्सीन लगवाएंगे और किस कंपनी की वैक्सीन लगवाएंगे। तो इस हवाले से आप आइडिया मालूम करें। एक तो आपके नोटिस में होगा कि जो कोरोना है मुझे हो चुका है इससे पहले और मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं चाहता हूं कि पंजाब के सब लोगों को लग जाए फिर उसके बाद मैं लगवाऊं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बनाया है, बहुत कामयाबी हुई है। तीनों सूबों में आपने नरेंद्र मोदी का जो बयानिया था वो दफन कर दिया है कि बलोचों को दीवार से लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस प्रोग्राम को चारों सूबों में अप्रिशिएट किया गया है। ये तो थी मेरी आपके साथ मुबारकबादी। अब सवाल मेरा सर ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी तो कोई तवज्जो दी जाए। कमरे बन रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, असातिज़ा के मसाइल जो हैं DCI लेवल पर और सेक्रेटेरिएट लेवल पर मसले हल नहीं होते, बल्कि ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि ये अदालतों में जाएं और अदालतों से कोई रिलीफ लेकर आ जाए तो हम करें। अपने पैरों पर फैसले नहीं कर रही ब्यूरोक्रेसी, जिसकी वजह से हज़ारों केस इस वक्त असातिज़ा के अदालतों में मौजूद है। इस पर भी कोई आप गौर कर रहे हैं?
इसीलिए हम जा रहे हैं कंप्यूटराइजेशन की तरफ, ताकि ये ट्रांसफ़र, ये लीव, ये रिटायरमेंट, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हों, ताकि आप बैठ के घर से ये तमाम चीज़ें मॉनिटर कर सकें। जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगी तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम भी कम से कम आएंगे और चीज़ें मेरिट के ऊपर होंगी। जहाँ तक कल्चरल डे की आपने बात की है, और हमने पूरी जो हमारी कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनको पूरी हिदायत दी हुई है कि ये जो कल्चरल डे हैं ये चारों सूबों के पंजाब उसमें लीड ले और उनको भरपूर तरीके के साथ मनाए। इससे एक यकजहती बढ़ती है और आपस में प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता है और वो चीज़ें परवान चढ़ती हैं। तो इंशाअल्लाह कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो इंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से हमारी उनका शेड्यूल आगे पीछे हुआ है, नहीं तो इंशाअल्लाह आप देखते कि यहाँ पे हमने और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी प्लान की हुई थी इस लाहौर के अंदर, ताकि हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकते थे। क्वालिटी में मैं प्लीज सिर्फ आपको बता दूं, बड़ा जरूरी सवाल आया कि क्या किया हमारी हुकूमत ने क्वालिटी के ऊपर। सिंगल नेशनल करिकुलम हम लेकर आए जिसकी वजह से आप देखना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग उसमें शुरू हो रही है। हम पहली दफा प्राइवेट सेक्टर से 50% ट्रेनर्स लेकर आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को हम फ्री ट्रेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस समर के अंदर। आप देखना 1 अगस्त से पहले। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आप देखना इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू।